Okay, so what we are actually interested in now, design. So design is actually looking for some specifications, isn't it? And or let's say we say that we have a particular desired performance requirement, but the given plant is fixed to us. So what can we do in order to achieve that performance, isn't it? So design is looking for those kind of parameters or those values or those features which actually give us that performance. So now on the screen, if you are able to see, this is a typical example of a system whose this is already discussed in the last class also, where we have seen where we have shown that for example this red colored line depicts the root locus of the system, which means for us for the time being it's about just a gain and the plant. The controller is very simple in terms of gain. We don't have anything else, and then we have the plant, and then we have a feedback because we are talking about closed loop control. So in this case, we have seen with a given plant and the simple gain, the root locus may be in this form where we have a red line representing the locus of these points, or you can see the root locus. And also another red line is going like this, which talks about the movement of poles as the gain is valued. So our controller in this case is just gain. And we know that by adding a gain to a controller, we're able to shift its poles. Okay? By adding just a gain to the controller, we're able to shift the poles of the system, because of which many things happen to the system. Let's say the transient response changes. This controller may even go into the stable, unstable region, and then many other things. So for example, point A represents a point on the root locus, okay, for which there is a particular zeta, which means there is a particular overshoot, there is a particular settling time, there is a particular rise time. All right. So having a pole at this point because of some gain k will actually cause it to have different overshoot at different time, settling time and different rise time. Similarly, if we increase gain k, it may go here, where it may have a different overshoot, a different settling time, a different rise time. All right. And if we move the gain or increase the gain by this much amount, then it may automatically turn out to be into an unstable state. So with this, we have understood that adding just a gain to a controller, this pure gain to a controller, can actually shift its closed loop poles, and because of which because closed loop poles are connected to the transient response and even the stability. So because of which the transient response and the stability can also change. But we have seen that with root locus, the poles will actually move about a particular trajectory, something like this, for a particular, in a particular shape, as per the system. So root locus may be this way, root locus may be a circle, root locus may be lines going to infinity, vertically, or maybe other ways. Root locus may be this way. So all that depends on probably the closed loop transfer function, which includes the controller and the plant and even the feedback, because this is about closed loop poles. But there could be a requirement of a performance where you can ask that whether that we want a performance like this, that the overshoot should remain same, but the settling time should decrease, or the rise time should decrease, and all those things. So this could be a requirement from the, let's say, some designer, or probably from some manufacturer, or probably from some other requirement. This requirement may come up to us. Can we have a system whose overshoot is same because of this line, let's say, but its rise time changes and the settling time changes? And we know by definitions that all these things are related. Rise time, settling time, and our overshoots, they're all related. So changing one means compromising on the other. So what is to be done? So either the first thing is either you change the system itself and let it be designed in such a way that its root locus will pass from this point. So once you say the root locus is passing from point B, then the point B is the design point, and then you can actually say that yes, this system will perform as per the required specifications. But changing that is really generally, or you can say generally avoided, because changing the plant is not generally feasible, because plants are generally systems that have been designed based on other specifications of performance rather than the stability and other things. So they are generally designed based on power requirements and other requirements of the the whole function. Generally, the purpose of the plant is something else. But in this case, we are looking at the other features of controller features like stability, steady state, and the overshoot. But
The features may be something else, like a lift is to be designed for 100%, 10%, or 1%. So that is not dependent on the stability and overshoot and other things. So we are designing lift for persons and for a particular speed and for a particular height, or you can say, or a particular maybe building which could be of any floor height. So that all that will actually the motor, the mechanical assembly for that will actually be determined based on some other features like strength, isn't it? The power requirements and other things. So once that is designed, then we go for the controller design, where we say that, okay, fine, the lift is designed now, it should not go beyond this thing, it should not overshoot, it should not be unstable. Then we come to the controller. So generally we do not go back and then change the plant. We basically try to change or modify the controller in such a way that it achieves that performance. So that's what design is actually all about. Now what can be done is, we can do one thing. We can change the we can modify the closed loop pole locations in such a way that the root locus passes through this point, because it's all about pole locations. And pole locations can be changed by adding a feedback compensator, or it can be added by a cascade compensator, because all those things will add some poles and zeros to the system, or you can say the overall system, and the root locus will also shift. So now this was already discussed that okay, if we have poles at B, A, it may have the some response like this, but poles at B will have the same overshoot. So this is, let's say, percentage overshoot. This is same, but it has a different response in terms of rise time. It is faster than the red one, and it may settle down earlier than the red one, and the overshoot is same. So can we have a system that responds like this without changing the system or changing the plant by just adding a controller? That's what this whole actually topic is all about. And we saw that the two important considerations for us would generally be the transient response and the steady state error. For stability, obviously the system has to be stable, then only we can look for these two things. And in fact, after doing all these things, still we have to check whether the system is stable or not. So obviously we assume that the system is stable, and then can we change these things to achieve a particular transient response and a particular steady state error. So we have seen that there are two configurations possible to add these poles and zeros to the system without changing the plant itself. One is doing a cascade compensation, where we have a plant, we have an original controller, which could be simply a gain K, and then we have a cascade compensator where we have a block which actually represents some poles and zeros in terms of a transfer function. And then this together with this, actually we have seen in block diagram reduction, will also kind of change the overall closed loop poles of the system, okay, and may enable it to reach to that location which is desired in terms of the location of poles on the S plane. Another one we saw was the feedback point, where we can add the compensator here, and this will also impact the closed loop poles and also change it as per the desired requirements. So one disadvantage that we saw because of this adding these compensators is that it will increase the order of the system, which means it can go to if the system is of second order, it may make it a third order system, and if it is a third order system, it may make it a fourth order system. And changing the system order may in fact change the closed loop poles and also change the type of response. So what is it that is to be done so that response is also not changed? So we have seen that we could do that probably in this way, where we saw one of the ways was ideal integrator one. Before that, we also discussed that we can have this compensation through something called as active compensators and passive compensator. This is active, this is passive. Okay? Active, I told you that it's for ideal compensators, like we have a differentiator, integrator. Pure integrator is 1 by S, pure differentiator is S. And the active the non-active or passive compensators are like having like S plus A. 1 by S plus A is a passive compensator, passive integrator, or S plus A in the numerator is a passive differentiator. So those are called as non-ideal, and the ideal ones or the active ones are called as they are called as the ideal compensators, the active ones. And I have told you that they are implemented using operational amplifiers. So I'll show you probably at the end. And obviously we require some power sources, extra power sources, but the main advantage is the error goes to 0 with the ideal ones. You can see that later on.
Whereas in the passive ones, the advantage is that we can develop them using the simple resistors and capacitors, which are called as passive elements. They don't have any internal energy. We don't need any power sources for them. But the disadvantage with them is that we may have altogether a finite error at the end. But it's not necessary that it is same as the error without compensation. The error may be highly reduced, maybe 10 times, 20 times, even 70 times, 80 times. Depends on the type of resistors and capacitors that we can use to realize, or we can say to implement that type of controller. ठीक है, तो कहने का मकसद है कि जो ये कंपेंसेशन हम कर रहे हैं एस प्लस से, ये रूट्स और पोल्स का जो डालना है, ये क्या है बेसिकली हम देखेंगे आगे. इसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स. ये एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस जेड, एस प्लस पी, ये क्या होता है? जैसे हमने प्लांट में देखा है कि 1/s² + 2s+3 या जो था वो क्या था, वो असल में रिप्रेजेंट करता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी डैम्पिंग रिप्रेजेंट करता है. but natural frequency is actually related to the stiffness and mass of the system. So actually those coefficients are nothing but the physical components of the system. Similarly, in the controller or in the feedback is about sensor, but in the controllers are generally implemented in electrical means in general, mostly, though we had mechanical controllers also initially, but most of the controllers these days are digital controllers or electrical controllers, where we can implement these control actions or like poles and zeros. Their significance or their realization is more about in terms of resistors, capacitors, operational amplifiers, and maybe other electrical components. Okay? Is it clear? Yes, sir. So then we looked at the type of compensators that we can study, but we have to again go back to the requirements. Our requirements, our aim is to see that can we increase the transient response, can we decrease the steady state error. That is generally what is desired, isn't it? So we'll target these two generally. Obviously, we assume that the system is stable. So improving transient response or improving the steady state error will be our aim. So we'll look at these one by one, like using a cascade one. We'll just talk about cascade compensation in this one. So we'll see that cascade compensation can be done by just adding a pole or adding a zero or adding both of them together, all those things, what are their impacts, and we'll study them one by one. So that's what we started with. We started with improving the steady state error first. Let's talk about transient response later on. So improving the steady state error via cascade compensation. So we talked about initially the ideal integral compensator, which also in the definition of control is known as the proportional integral controller, which is the PI. Because the error is fed to the the plant proportional to the error, and also the integral of the error is fed to the plant as inputs. So that's why we call it as PI, or the proportional integral controller. This is generally an ideal one because we'll not we'll just use 1/s here. So we'll call this as an integral. Sorry, the ideal integral. Now this was the example that I showed you last time. This was the plant and the simple gain K. And if there is some, let's say, second order plant or any other order plant we have, and accordingly we saw that its root locus is supposed this way, where we have some poles, closed loop, open loop poles, and then as the gain is varied, these move like this, and this goes like this. As we add a compensator like this, so this is just the ideal one because we don't add a proportion. Don't confuse this K with the proportional one, because when we say PI, proportional integral, that means proportional plus integral. So this means that this has to be added rather than multiplied, like K/S is not an addition. This is just a multiplication. So this will be nothing but the ideal integrator only. This cannot be ideal. So this cannot be PI, because for P we need to add a proportional to the error. So this will be this E here. That is the error in this case will be just integrated and fed to the plant. So plant is just fed the integration of the error, not the proportionality of the error. All right. So, so this will be the typical way of adding an integrator. Let's say an ideal integrator. So we can say K/S. Let's say some gain is there also. So this will lead, if we find out the closed loop response of this or the root locus, this way, this way, because what has happened is another pole at 0 has been added. So pole at 0 has been added. So if we see for the root locus, compare with this one, so we have now 4 of the open loop poles. One is at 0. Now we can see from to the left of odd number of poles we draw the root locus. So root locus now will be between this one and this one, and this one and this one. So the root locus may turn out to be something like this. So our point of interest was, let's say, point A, or sorry, maybe some other point.
for the time being, let's say there was a point A on the root locus. Now that point is not now on the root locus. So can we say that we want a point A which has to be on the root locus, but it has to be the system it has to be on the root locus without changing because that will otherwise change the transient response. Now if you see this one, in this case the root locus has shifted, so obviously the transient response, everything has changed because now it's not going through this. Now we want a system which, after even adding a compensator, should go through this, because if it goes through this, that means the transient response is same, but what we are able to do is, because of adding an integrator, we are able to reduce the steady state error. ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा मैं? यस सर, थोड़ा तेज। थोड़ा हूँ करो ना, बोलो, रोको मुझे, आप ब्रेक ही नहीं लगा रहे मुझे। अभी तक कोई डाउट? नो सर। तो हमने कहा था कि प्लांट ऐसा हमने अभी तक पढ़ा, आज तक कितना पढ़ा था हमने, ठीक है, और उसका रूट लोकस सपोज ऐसे है। अब ये रूट लोकस तो मैंने दिखाया ए के थ्रू जा रहा है लेट से, लेकिन लेट से एक और पॉइंट यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे हमें वो चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेटर इस पे लगाता हूँ, ये असल में मैं ये और ये प्लांट अलग है, ये इसको ऐड नहीं कर रहा मैं, ये अलग प्लांट है, अलग सॉरी ये अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे मैं के बाई एस लगा रहा हूँ, के है, तो ये के बाई एस और के ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये सेम चीज है, ये अलग चीज है। इसको आप के आई भी लिख सकते हैं, के आई बाई एस भी लिख सकते हैं इसको, ये अलग गेन है सपोज। तो मैं यहाँ गेन हटा ही रहा हूँ, नया कुछ लगा रहा हूँ कंट्रोलर, यहाँ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, यहाँ खाली इंटीग्रल कंट्रोलर है। तो अगर ये ऐसे में करूंगा और इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरा जो प्लांट है उसके नीचे क्या ऐड हो रहा है, सॉरी मल्टीपल हो रहा है, एस। समझ में आ रहा है? जमीर, तस्दीक, हाँ जी, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर मैं खाली ये देखूं तो एस क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये एस मल्टीपल होगा प्लांट के डिनोमिनेटर के साथ, है ना, डायरेक्टली। तो उससे एक हिसाब से प्लांट का क्या बढ़ गया, ऑर्डर भी बढ़ गया, हाँ। है ना। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर प्लांट था, एस से मल्टीपल, तो ऑर्डर बढ़ गया ना, थर्ड ऑर्डर बन गया। यस सर। तो जब उसको मैं क्लोज लूप रेस्पॉन्स उसका निकालूंगा या उसका रूट लोकस निकालूंगा मैं, तो वो मुझे लगभग ऐसे आएगा सपोज, बिकॉज अब बढ़ गए ना ओपन लूप पोल्स यहाँ पर। अच्छा समझो ये थर्ड ऑर्डर है, मैंने थर्ड लिखा है ना यहाँ पे, सो लेट्स अज्यूम थर्ड, बिकॉज वे 1 2 3 पोल्स। अब थर्ड ऑर्डर ये है जीएस, अब इसको मैं एक और 1/s लगा रहा हूँ, तो ये कितना ऑर्डर बन जाएगा, फोर्थ ऑर्डर, मतलब 4 पोल्स, 1 2 3 4। सो अकॉर्डिंगली रूट लोकस विल चेंज। इसका मतलब अब जो पॉइंट जो हमारे हैं, ये है, ये है, ये है, ये वाले पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है ही नहीं, तो जो हमारा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो टोटली चेंज हो रहा है, बिकॉज वो डिपेंड करेगा ना इसी पे, लोकेशन ऑफ दिस, है ना, सेटलिंग टाइम वगैरह इसी पे डिपेंड करता है ना। अब हमारा जो अगर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट है, तो उसका अलग रेस्पॉन्स, उसका अलग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, उसका अलग राइज टाइम है, अलग सेटलिंग टाइम है, ठीक है। तो मतलब हमने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को टोटली चेंज कर दिया, लेकिन हमारा वो पर्पज नहीं था, हमारा पर्पज था इंप्रूविंग लेट्स से फर्स्ट पार्ट विच इज स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सेम रहे, लेकिन सिर्फ स्टेडी स्टेट एरर फिलहाल ठीक हो जाए, यानी इससे इंप्रूव हो जाए। उसके लिए हमें पता था कि हम अगर इंटीग्रेटर लगाते हैं, इंटीग्रेटर लगाने से क्या होता है, अगर हम क्यों इंटीग्रेटर लगा रहे हैं, स्टेडी स्टेट एरर सर उसमें क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन लूप पोल ओरिजिन पे ऐड होता है ना, उससे क्या होता है, सर शिफ्ट होते हैं ना, हमारा जो ये लोकस है वो शिफ्ट होता है, दूसरे पॉइंट पे आता और है। बता कोई इसका आंसर। हम इंटीग्रेटर क्यों लगाएंगे एरर को कम करने के लिए? सर ये हमें पढ़ा था ना सर, हाँ, तो फिर सर वो 0 इन्फिनिटी होता है इसका, ये केपी कांस्टेंट। हाँ, तो फिर हम अगर इसमें ये स्टेडी स्टेट एरर फिर 0 होता है, 1/∞ 0। अगर आप लोगों को याद होगा जो हमने पढ़ा था स्टेडी स्टेट एरर का टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम सिस्टम टाइप होता है हमारा, सिस्टम टाइप कैसा होता है, असरार जरा आप बताओ सिस्टम टाइप कैसा होता है। सर फर्स्ट और सेकंड और मतलब इनपुट, मतलब हमारे पास होता है 1/GS, कैसा होता था हमारा, या जो भी है, यानी एस डिनोमिनेटर में कैसा होता था हमारा एक्सप्रेशन, एस रेज पर ऑफ, सर समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ जब हमने स्टेडी स्टेट एरर पढ़े थे ना, यस सर। तो उसमें हमने एक जनरल डेफिनेशन भी बताई थी ना, कि जब हम रैंप इनपुट, स्टेप इनपुट,
यस सर। और जो है पर नहीं ऑर्डर पैराबोलिक चेंज इनपुट। हो गया ना। हाँ नहीं, ऑर्डर की बात करते थे कि वहां पर कुछ और बात करते थे, याद दिलाओ। हम सिस्टम टाइप की बात करते थे वहां पे, याद है कुछ? यस सर। हमने स्टेडी स्टेट में एक पढ़ा था कि हमारा एक सिस्टम टाइप होता है। टाइप 1। हाँ, तो हमने सिस्टम को डिफाइन किया था k इंटू एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू डिवाइड बाई एस रेज पर ऑफ n इंटू एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू। याद है किसी को? यस यस सर। सर। यस सर। n n का क्या n का क्या मतलब होता था? n डिटरमाइन करता था इंटीग्रेटर। सिस्टम टाइप को। यस सर, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 होगा तो एक इंटीग्रेटर हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अगर जीरो है तो कोई इंटीग्रेटर नहीं है। तो वी हैड समथिंग कॉल्ड एज टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, इतना हमने पढ़ा था, टाइप टू तक। असरार याद आया आपको? यस सर। एक बोल चुको ना कि वो आए समझ। तो जो हमने वो टेबल पढ़ा था उसमें हमने फिर वो हाँ, टेबल। उसमें हमने समझाया था ना कि हम सिस्टम को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप वन, टाइप जीरो, टाइप टू, विच इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोल्स एट जीरो, यू और कैन से, है ना, ओरिजिन, सॉरी। तो हमने फिर देखा था कि अगर हमारे पास एक पोल होगा, अगर हमारे पास टाइप वन सिस्टम है, ठीक है, जी सर। टाइप वन सिस्टम में हमारा केपी इन्फिनिटी बनता है और एरर हमारा जीरो हो जाता है, यस सर। ठीक है, अगर आपको याद होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास टाइप जीरो सिस्टम है, इस वक्त देखो देखो, अगर मेरे पास टाइप जीरो सिस्टम है, सपोज ये टाइप जीरो सिस्टम है, अगर मुझे इसमें कुछ स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, यहाँ पे सुन रहे हो? तस्दीक, जमीर, असरार, जमीर, फैजान, यस सर। हमारे पास सपोज ये टाइप जीरो सिस्टम है, थर्ड सर ऑर्डर है। टाइप सर टाइप इस पे डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स कितने होंगे? हाँ, सपोज हमारे पास सपोज टाइप जीरो सिस्टम हमारा जो है वो ऐसे होता है। सपोज हमारे पास इस तरह कोई सिस्टम है, एस क्यू प्लस टू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस वन, ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम तो है, लेकिन इसका टाइप वन है, इसका टाइप जीरो है। क्या है? टाइप ठीक 0। है, अगर मेरे पास इस तरह सिस्टम है, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, ये भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ना, यस है ना, एस एस क्यूब हो जाएगा ना, यस लेकिन इसका टाइप क्या है? वन। वन, क्योंकि इनका एक पोल ऑरिजिन पे है, इसमें कोई पोल ऑरिजिन पे नहीं होगा लगभग, है ना, नो पोल एट ऑरिजिन। आया समझ? सर। यानी इसका मतलब ये सिस्टम को हम दिखा सकते हैं ऐसे भी, वन बाई एस लाइक दिस, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, है ना, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा ना फाइनली। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस सिस्टम में एक इंटीग्रेटर है ना, ऐसा कुछ कह सकते हैं बाय लैंग्वेज, लिटरली, ठीक है। तो वरना इसका भी ऑर्डर थर्ड था, इसका भी ऑर्डर थर्ड है, लेकिन यहाँ पर टाइप, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पोल पे ऑरिजिन पे है ना पोल है कि नहीं, क्योंकि वो हो सकता नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेट दैट वी हैव अ पोल एट द ऑरिजिन, एंड वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस, वन बाई एस स्क्वायर इंटू टू एस प्लस वन, ये भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ना, लेकिन इसमें टाइप क्या है? 2। बिकॉज वी हैव टू पोल्स एट ऑरिजिन। ऑरिजिन। हमने पढ़ा है स्टेडी स्टेट एरर में, अगर हम देखें सिंपल स्टेप इनपुट के बारे में अगर हम बात करें फिलहाल, तो हमारा ये था कि अगर हमारा टाइप वन सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमारा केपी जो है वो इन्फिनिटी आता है, और इसी वजह से एरर हमारा जो है 0। ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर बेसिकली ना कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ सिस्टम है, यानी कोई भी ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, कोई भी, लेकिन अगर हमने उसको एक इंटीग्रेटर लगाया, उस वजह से हमारा क्या है, एक चीज डेफिनेट हो जाएगी, हमारा उसमें जीरो हो जाएगा फॉर स्टेप इनपुट, है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम आइडियल इंटीग्रेटर ट्राई कर रहे हैं, इंटीग्रेटर लगाने की, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है स्टेडी स्टेट एरर कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। So that's the concept. Now, what we have seen, but because of studies, adding an integrator, what we are able to see is that it changed the transient response, which is not desired. It may lead to steady state error being zero, but the transient response is changing, which is highly undesirable. वो आज steady state error में zero, मगर आज के साथ overshoot हुआ रखा रही, ठीक है, which is highly undesirable. We don't want overshoot to change. We want something like this. We want something like this. Let's say
the overshoot should remain same because we have some physical constraints. Himakari hit building in this last porous ठीक lift, so we cannot allow it to go beyond that. ठीक है, या ground के नीचे over hit करे, so we cannot allow it to go beyond something. So our this overshoot has to be fixed. Let other things change. Let's say we don't care, but this should not change. Similarly, in this case, because of this integrator, our steady state may finally go to 0, but it may overshoot, it may hit something, it may do even other things. It may be slower or it may happen to be faster. So we don't want at this stage, let's say, as a designer, change the transient response. We want to keep the transient response same, but let's change the steady state error. Can we do that? That's what we are actually looking at. So because of this, we are able to see that we are able to change the the system response, but we are not able to get the same transient response. So for that, what we generally do is, what we employ with these ideal integrators is adding a 0 at, let's say, some near about to this. So what we do is something called as pole 0 cancellation. So हमें पता है यहाँ पर ये 0 पे हमने पोल ऐड कर दिया, ओपन लूप पोल है ये, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कंपेंसेट करने के लिए ओपन लूप 0 ऐड करेंगे, सॉरी हम 0 ऐड करेंगे नियर अबाउट दैट पोल व्हिच इज एट 0. सो A has to be very near to the value of 0 or the origin. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअली पोल 0 कैंसिलेशन हो जाएगा और ये सिंपली इस तरह का प्लांट बन सकता है. लेकिन है ये वैसा नहीं, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये में फर्क है, अभी हम देखेंगे. लेकिन theoretically ये पोल एंड 0 cancels because they are very near. So their impact on the transient response is almost cancelled, but because the system type is still type 1, the steady state error will go to 0. ठीक है, सो इसका अगर हम बनाएंगे, इसका लगभग फिर ऐसा बनेगा. तो ये और लगभग ये लगभग सिमिलर होता है, ये भी ए के थ्रू पास करेगा लेकिन सेम नहीं है. सिमिलर है, पास थ्रू कर रहा है वहां से, लेकिन इट इज नॉट सेम एज दिस. Because here we have 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 4 poles and a 0. And their angle contribution because of pole and 0 at the origin or near to the origin will be almost 0. So this will be almost same as this. So the transient response will remain same, but because there is S in the denominator, so we have the type 1 system, so error will go to 0. Clear? Yes, sir. यहाँ में doubt क्या? ये करो थोड़ा क्लियर कैसे से हम सही थे. सपोज ये मैंने एक प्रॉब्लम दी है, किसी ने ट्राई की? ये बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है. So you are given a problem like this. So this is what we call as without compensation. ठीक है? And this one is with compensator. All right. So what we are given is we're given a plant which is if we look at the configuration, we are given in this way, which means we know the the open loop poles directly by inspection rather than giving a polynomial to us. Let's see in this case, it's easier to see. So we can see that this is a third order plant, okay, or a third order system given to us, and it's simply a proportional controller. And if we try to just solve this one, so for a particular gain, this will change the closed loop poles for this, which will change the transient response at each value of k, and then obviously it will have, we can sketch a root locus for this. Okay, and at each value of k we can have different values of transient and like different values of steady state error, different values of the transient response parameters like the percentage overshoot and then the rise time, the settling time, because they are all dependent on these poles. ठीक है, ये तो क्लियर है ना. सो लेट्स से अगर इतना ही हमारे पास दिया हुआ है तो इससे हम एक रूट लोकस बना सकते हैं और हमें बताएगा वो द मूवमेंट ऑफ क्लोज लूप पोल्स एज द गेन इज वैरिड. ये तो हमने अभी तक सिस्टम सारे देखे हैं ऐसे. अब इसी सिस्टम के लिए क्वेश्चन है कि आपको दिया है सपोज जीटा जो है 0.174. इस जीटा 0.174 पे, यानी इसका मतलब है ये क्या जीटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट लाइन ऑफ कांस्टेंट ओवरशूट, इजंट इट, परसेंटेज ओवरशूट. तो आपको दिया है सिस्टम की यही सिस्टम के लिए आपको परसेंटेज ओवरशूट सेम रहना चाहिए, लेकिन आपको जो है तो वी हैव परसेंटेज ओवरशूट इज सेम.
ठीक है, but the question asked is show that the addition of compensator, in fact ये question में वहीं से compensator का pole वोल्ट भी बता रहा है, the ideal integrator reduces the steady state error to 0 for a step input without affecting the transient response. So it's already giving you the values of the zero, and then it asks you to find out how they prove that this reduces the steady state error to 0. Now, what would be the steps to solve this? What does come into your mind? This is how you approach the problem, a design problem. बताइए. सर सबसे पहले शायद हमें ओपन लूप पोल्स इसके देखने होंगे. ठीक है, ओपन लूप पोल्स निकालेंगे हम. -1, -2, -10. हाँ सब लोग ध्यान से देखो कि ये इम्पोर्टेंट है. हाँ सर, फिर उसके बाद हम होगा ना पोल ऐड, पोल एक ऐड होगा ना कंपनसेटर से. फिलहाल कंपेंसेटर को छोड़ो, पहले आपको क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए हमें? सर इसी का रूट लोक्स करेंगे हम ड्रॉ पहले, जो विदाउट कंपनसेटर देख है. कहाँ से जाएगा रूट लोग सर. फिर जैसे ओपन लूप पोल्स है ना, फिर जो ऑड वाला होगा उसके साइड से हमें देखना है कहाँ से जाएगा हमारा रूट लोकस. देखो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें आपको ये खोलता हूँ ना, मैटलैब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, विदाउट प्लॉट हमारे पास ये 1 है, 1/-1, -2, -10 है ना हमारे पास. यस सर. इसको कमेंट करता हूँ, इसको रन करो. ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, ये तो पूरा पॉलिनोमियल बन गया इसका. ठीक है, सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, अब अगर मैं इसका रूट लोकस ड्रॉ करूं, it's something like this. All right. ठीक है. जी सर. So if I zoom this region, because this seems to be same after that, so I am zooming it. So this is the root locus, and this is obvious because we have -1, -2, -1 is pole. This is -1.86. This is एक सेकंड, इसको क्या है? -1, -2, -10. This is 1. This is -10. अब ठीक दिखा रहा है इसे. अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या कर रहा है. हाँ ठीक है. ठीक है, यस सर. -1 तो -2 છે ને ઓપન લૂપ પોલ્સ. यस सर. ठीक है, डैम्पिंग इसमें 1 क्या दिखा रहा है एक सेकंड फिर से मैं बता दूं. क्या कह रहे हो? सर? इसमें डैम्पिंग 1 क्या दिखा रहा है सर? ये जो जहाँ मैंने पॉइंट क्लिक किया ना, वो 1 मतलब ये cos 0 is 1, ये वाली लाइन. मैं रियल एक्सिस पे क्लिक कर रहा था ना, इसमें cos 0 1 रहेगा ना, cos 0 is zeta. Theta 1 exactly. So the first step will be to look for this, that is draw the root locus, for which we know the rules. Let's say if we don't have MATLAB, so we know the rules, we will draw the root locus. So we know that it has to be 90 degree from here, it has to leave, and we can find out these breakaway or break-in points, है ना? And we can find out the location of g omega axis, so we can somehow plot this root locus. This is simpler to draw, don't have any complicated things here. So this is all that can be done with hand. ठीक है, clear? सर जीरोस मत होंगे इसमें कुछ? इसमें इन्फिनिटी पे जाएंगे ना तीनों, क्योंकि जीरो तो कोई नहीं है, तो तीनों इन्फिनिटी पे जाएगा. एक जाएगा लेफ्ट से इन्फिनिटी, एक यहाँ से इन्फिनिटी, एक यहाँ से इन्फिनिटी. ठीक है, यस सर. Yes. इसमें 3 जीरोस होंगे ना इन्फिनिटी पे, लेकिन फाइनाइट जीरो कोई नहीं है इसमें. ठीक है, we don't have anything in the numerator.
So they will go to infinity, and this angle of kind of sorry, this geometric axis जब हमें मिलेगा तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा इसको ऐसे लेना है हमें. They will go to infinity. और हम asymptotes इसमें निकाल सकते हैं, asymptotes की ना इक्वेशन. तो asymptotes में हमें एंगल मिलेगा तो हमें पता चलेगा हमें इस कर्व को कैसे लेना है, वो भी हमने किया था. Yes, sir. Right. So then what we are interested actually is in zeta is equal to 0.174. So we want this point, isn't it? तो ये हमने लास्ट टाइम किया था एक बार. क्या लिखा था हमने? z इज इक्वल टू कुछ, याद है हमने क्या लिखा था? z इज इक्वल टू 0.174 zeta and s grid. सर जो एस ग्रिड फंक्शन है सर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली ये लाइन जो है ना, इस बेसिकली इस ग्रिड को देख सकते हैं. आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ फॉर दिस. अभी जस्ट ए ग्रिड होता है ना, ग्रिड देखा आपने प्लॉट्स में? सर जब वो इसमें वो डिविजन्स हो जाते हैं फिर जब हम ग्रिड ऑन रखते हैं. जनरेट्स फॉर पोल 0 एंड रूट ओवर ए ग्रिड ऑफ कांस्टेंट डैम्पिंग फैक्टर्स. देखिए, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. So it generates an S-plane grid of constant damping factors and natural frequencies. Nothing more than that. So just a function that they have developed. The control system toolbox. ठीक है? Okay. So now we'll plot this on the graph. Let's say we'll plot this one. अच्छा, अगर हमें अब डालना होगा, ये कैसे डालते हैं हम? अगर आप कैसे मुझे बताइए, कोई 0.174 अगर मुझे मैटलैब के बगैर डालना हो, कैसे डालूंगा? Cos theta in terms of cos theta. Cos theta is equal to this, isn't it? तो हमें थीटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. जब थीटा मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या जो भी है हमारी रियल एक्सिस, वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट 174 इवन विद अ स्केल एंड अ ग्राफ. ठीक है? Yes, sir. So now we want our let's say this kind of, let's say we want to prove it that this adding a compensator. देखिए अब ये वाला आप कहेंगे सर ये तो उसमें जा रहा है. देखिए इसको करूंगा जूम. आप कहेंगे कि ये तो डैम्पिंग रेशियो पे है, ये पॉइंट हमें तो मिल गया, पॉइंट ये वाला है ना, Yes, sir. यहाँ पे इस वक्त ही है ना, तो हमें तो ये पॉइंट मिल गया जहाँ पर ट्रांजिएंट रिस्पांस इसी सिस्टम का है विद सम गेन के हम तो वो परफॉर्मेंस रीच कर रहे हैं. बट इफ यू रिमेंबर करेक्टली विद दैट गेन, लेट्स से योर स्टेडी स्टेट एरर मे नॉट बी 0, बट स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस सिस्टम विल बी 1/1 प्लस kp. Yes, sir. Will be है ना, और finite, sir. kp फाइनाइट होगा और इसीलिए आपका एरर कुछ ना कुछ रहेगा, एंड में कुछ ना कुछ एरर रहेगा. ये मैं आपको सिमुलेट करके दिखा सकता हूँ. ये इसका सिस्टम दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ जी, बाकी लोग जरा हाँ हाँ करिए कुछ. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. मैं बनाऊँ ये सिस्टम है, मैं गेन के सपोज गेन 1 पे सपोज just to show it to you. So this is what I am getting. So what is my input? Input is 1, isn't it? Step input is 0 to 1. What is it that I am getting? 0.05, which means a huge steady state error, isn't it? Hmm. So which means if I add gain and I make it go to, let's say, 100, again simulate this. Error कम होगा. So error has decreased considerably. और It has gone almost to 1, but still there is a steady state error, which is this much. 0.2. 0.2 से कम है ना. यानी इसका मतलब गेन बढ़ाने से मैं तो ट्रांजिएंट रिस्पांस भी मेरा चेंज हो रहा है ना. आई एम चेंजिंग द ट्रांजिएंट रिस्पांस. अभी तक वो था लगभग क्रिटिकली डैम्प्ड जैसा, अब ये बन गया लगभग ना 100 डैम्प सिस्टम जैसा, लेकिन तब भी स्टेडी स्टेट एरर मेरा है. अब मैं कहाँ से इंटरेस्टेड? मैं इंटरेस्टेड हूँ अब यहाँ पे, कहाँ पे? ये रूट लोकस के पॉइंट पे. अगर मैं कहूँ कि चलो ये पॉइंट हम इंटरेस्टेड है, हम जहाँ पे डैम्पिंग रेशियो को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैंने जूम किया है, तो मैं इस पॉइंट पे अगर ढूंढना चाहूँ पॉइंट, गेन कितना है? 161. 1. इसका मतलब अगर मैं 161 गेन पे जाऊंगा तो मेरा जो है सिस्टम उस डैम्पिंग रेशियो से मीट करेगा, उतना ओवरशूट मीट करेगा. क्लियर? Yes, sir. तो अगर भी तो सिमुलेट करनी है चीज सिचुएशन टू सी द रिस्पांस 161. देखिए अब ये मेरा रेस्पॉन्स आ रहा है. रेस्पॉन्स मतलब ठीक है,
ये उस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ना उस ओवरशूट को मीट कर रहा है, सपोज 1.3 है ना लगभग यहाँ पे, यस सर। यस ये सर। लगभग जो ओवरशूट मेरा डिजायर था, सपोज ये ओवरशूट उतना उससे ज्यादा जा नहीं रहा, ठीक है, हो रहा है राइज टाइम ओवर सेटलिंग टाइम सब ठीक है, लेकिन मैं एंड में देख रहा हूँ भैया ये तो एंड में सेटल ही नहीं हो रहा फिर से है ना। तो ये लगभग पॉइंट, ये कितना है 0.9 है, तब भी 0.1 का एरर है, तो मतलब लिफ्ट शुरुआत ही नहीं था जाए थोड़ा रोजा जी रिश्ते उससे दावे तो लगना ना फस सकता दाब अगर इस सिस्टम उसमें सिस्टम जो बट तेज थी बेशन ओवरशूट थी की मगर ये थे है कि दाब लगे। I'm interested first, let's say, in decreasing this steady state error, and I know that to get a zero steady state error, I can employ an integrator. Clear? यस सर। But I have seen that adding an integrator will also cause change in the system type, and then can change the transient behavior, which I'm not interested in changing the transient behavior. Am I interested in actually moving the steady state error to zero? So can I do something like adding an integrator like this? So I am adding now an integrator जो अभी मैंने इस पे दिखाया था आपको, एक है विथ ये 0.1 by s है ना। सो मैं कोर इंटीग्रेटर दी ऐड मगर मुझे खाली इंटीग्रेटर से किस प्रॉब्लम, इसलिए हम वर्क करन 0 ऐड एट नियर टू दैट व्हिच इज 0.1 is near to 0, isn't it? So what will happen with this? So let me check, let's see. So this is it. I'm using the same gain, let's say, for the time being. Let's see what happens. सर गेन 161 था ना शायद। चलो क्या गेन तो बाद में हम चेंज करेंगे फॉर सेम कंपैरिजन इट्स बेटर टू टेक द सेम। मैंने सिर्फ ये क्या किया, इसको मैं यहाँ लिखूंगा कंपेंसेटर, इसको डबल क्लिक करके हम लिख सकते हैं कंपेंसेटर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं प्लांट, ठीक है। Now let's see, we are looking at 1.2 है ना, यहाँ पे देखो 1.3 के करीब ही है लगभग, है ना, ज्यादा चेंज नहीं है, और लेकिन एरर जो हमारा है near about 0.96, it has improved, it has not gone to 0 but it has gone to 0.96। हाँ, कितना रिड्यूस हुआ, 0.04 है अब एरर। यस सर। और इससे पहले जो सिस्टम था उसमें कितना था, सर 0.1 0.1 से ज्यादा है ना। यस सर। तो 0.1 से ज्यादा है। तो काफी कम हो गया। लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन ये पूछे मुझसे, सपोज आप खुद बताइए कि इसमें तो हमने इंटीग्रेटर लगाया, इसमें 0 होना चाहिए था ना एरर, वो क्यों नहीं हुआ? ऐसे ना सुनिए आपको ना आर्ग्यूमेंट ये आई, मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, सर ये मत है आइडियल कंपनसेटर। नहीं आइडियल लगाया ना हमने, नीचे एस है ना, जब नीचे एस आ गया तो सिस्टम टाइप बढ़ गया खुद 1, और आइडियल कंपनसेटर में सॉरी इसमें सिस्टम टाइप पे 1 बढ़ेगा, तब तो कुछ भी हो 0 होना चाहिए। पता हो क्यों नहीं रहा, कोई बता सकता आप में से, गेस करो। लॉसेस होंगे ना। ये हम सिमुलेशन में है ना, एनवायरनमेंट में जहाँ लॉसेस कुछ नहीं है, हम बना सकते हैं लॉसेस भी, लेकिन फिलहाल नहीं है। पहले ये बताओ आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जब आइडियल इंडिकेटर लगाएंगे तो 0 होना चाहिए कुछ भी हो, है ना? यस सर। बताइए किस किस को कॉन्फिडेंस है? तो आइडियल इंटीग्रेटर का वही मतलब होता है ना कि मतलब एरर मिनिमम एरर 0 हो जाए। 0 पूरा 0 होना चाहिए सर ये सर वो 0 है ना इसके शायद 0 क्लोज, हाँ इन्फिनिटी पे सर ये होता पोल है। के क्लोज है ना 0, क्या कह रहे हैं आप? उस वजह से सर जो हम पीआई इन कंपनसेटर्स यूज करते हैं उसमें 0 क्लोज होता है ना, पोल के जो ओरिजिन होता है एट पोल एट ओरिजिन, उसके क्लोज हम रखते हैं ना 0। इसमें सर हम एजम्पशन भी लेते हैं कि डोमिनेंट पोल जीटा उसी के लिए डिफाइन होता है। जीटा पहले मैं ये देखो, जैसे आपने कहा ना इन्फिनिटी, असल में इन्फिनिटी के लिए जरा मैं उसको टाइम बढ़ाता हूँ। पहले मैंने 20 किया सिमुलेशन टाइम, अभी था 0.04 है ना। यस सर। अब चेक करते हैं। सर हुआ ना कम, देखो कम हो रहा है ना, ठीक है। यस 0.019 आ रहा है ना,
अगर आप टाइम बढ़ाएंगे ना, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं असल में, ठीक है। अगर मैं Yes, sir. इसको 100 करूं, ये था तब अच्छा लगा मास सिमुलेशन में ना इतनी सोरे एक अंदर से। देखिए कहाँ पहुंच गया, Yes, sir. कौन सा हुआ था 1. ना, एरर को लगभग खत्म, सॉरी। तो यहाँ के लिए इन्फिनिटी डिफाइन होगा 100, है ना, Yes, sir. आया समझ, क्लियर। इनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर मतलब होता है कि अगर हम चाहें दो प्लॉट्स को कंपेयर करना, सपोज मैं ये वाला जो है ना, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो शो सिमुलिंग थोड़ा हेचुन पान से जो फायदा कॉपी मैं इसी में लाता हूँ, इस एनवायरनमेंट में ही, इसको देखो पेस्ट, ठीक है। मैं दो लूप चला रहा हूँ, समझो एक ही इसमें फंक्शन में, उससे फायदा मेरा होगा, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब मैं अगर कंपेयर करना चाहूंगा इनको, तो मैं यूज करता हूँ इसमें सिमुलिंक में ना, कॉमनली यूज ब्लॉक्स में मक्स मल्टीप्लेक्सर काइंड ऑफ थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करता हूँ। मक्स क्या करता है, सिग्नल्स दो को जमा करता है, और फिर मैं इसको स्कोप के जरिए से बाहर निकालूंगा। सो सिंक, स्कोप होता है सिंक, सोर्स होता है हमारा इनपुट, इससे मैं स्कोप में डालूंगा, और इससे यहाँ के आउटपुट को यहाँ से लूंगा, यहाँ से आउटपुट को यहाँ से लूंगा। मैं दोनों के आउटपुट्स को कंपेयर कर सकता हूँ, देखो इसे अपुष्वना सर्विस अच्छा पोजी। यस सर। Yes, sir. You go ideal compensator, you go who without compensation, इसको सा फर्क है। वही लिफ्ट वो तो पंज स्टाइल जाए वो था कितना यस सर। ओवरशूट चल लगभग सीएम ही चल लगभग सीएम ही ओवरशूट यस सर। सामोस वापस बना No. आया कत समझ। So this is how you can actually do this. Even you can if you want, if you're interested in finding out the error rather than the signal को डायरेक्ट ढूंढ के, देखो मैं एरर को भी कैच कर सकता हूँ। एरर कहाँ आता है हमारे, यहाँ पे आता है ना एरर, ये ना एरर सिग्नल। यस सर। तो मैं वहां उसको पिक करूंगा, मैं देखो पिक किया इसके एरर को और इसके एरर को पिक किया। बताओ क्या आना चाहिए स्कोप में, एरर इसका एरर क्या आएगा, 0 होना चाहिए ना, पहले वो ज्यादा होगा फिर कम होगा फिर 0 हो जाएगा। देखो ये 0 है ना लेफ्ट साइड में, हाँ सर। ठीक है पहले ज्यादा है। 0, देखो येलो वाला 0 एरर हो रहा है ना एंड में, जीरो फिर उसमें ज्यादा है। एरर को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, सिस्टम के आउटपुट को प्लॉट कर सकते हैं, सिस्टम के आउटपुट के बाद जो सिग्नल आ रही है उसको प्लॉट कर सकते हैं, मतलब ना जो प्लांट को जो इनपुट प्लांट को जो मिल रहा है ना वो भी प्लॉट कर सकते हैं। What a plant is getting as a signal from these two can be plotted also like this. So, this is input to the plant. It's almost same. I'm going to call it input to the plant. We don't have to worry about this. This is an input to the plant that we have got. Okay? So this is so now this is with Simulink and let's say all these things. But let's come back. सर आप टाइम चेंज कर रहे थे ना उसमें, जो आपने 100 रखा था फिर वो स्टेडी स्टेट एरर 0 की तरफ गया। हाँ तो फिर मैंने दोनों के लिए रखा ना सेम टाइम, फिर दोनों के लिए सेम रखा। यहाँ मसला है दोनों सेम 100 सेकंड के दोनों था को ना मैक्सिमम प्लॉट ना तो अलग अलग कर सिमुलेशन टाइम सेम ही था, अलग सा फाइल ये वाली थी जिसमें 10 सेकंड था। सर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे सर, सिमुलेशन टाइम चेंज करने से जब हम ज्यादा रख रहे हैं तो क्यों हो रहा है सर? देखो आपको जो स्टेडी स्टेट एरर है ना, यस सर, इसकी डेफिनेशन क्या है जरा बताओ किस तरह याद है आपको? दिस इज द एरर। देखो एरर और स्टेडी स्टेट एरर में क्या फर्क है सर? स्टेडी स्टेट एरर होता है जब हमारा इनफाइनाइट टाइम, बस इनफाइनाइट की बात की ना आपने उसमें फर्क इनफाइनाइट से ही आता है। तो इनफाइनाइट मतलब होता है आफ्टर सम टाइम व्हिच कुड बी फॉर सम सिस्टम इट मे बी 10 seconds, some it may be 100, some it may be 1000, but for a particular system it may be same for all the cases। like जैसे मेरे पास सिस्टम एक है, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, तो उसको मैं कंट्रोलर लगाता हूँ, एक कंट्रोलर, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा कंट्रोलर, मैं तीनों की परफॉर्मेंस देखना चाह रहा हूँ। तीनों में देख रहा हूँ कि
स्टेडी स्टेट एरर से अगर मैं इनको क्लासिफाई करना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ तीनों में कुछ मतलब ना एरर भी है 10 सेकंड के बाद। इसके लिए हो सकता है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड स्टेडी स्टेट एरर होगा सपोज, सॉरी ना, ये टाइम होगा जब ये सेटल हो जाएगा। तो हम जनरली सेटलिंग टाइम से, तो अपना जो है एक डेफिनेशन होता है हर किसी की इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी डजंट मीन इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, कैन मीन एनीथिंग। फॉर दिस थिंग लेट्स से 100 सेकंड इज इन्फिनिटी, इवन लेस देन दैट, ठीक है। अच्छा, उससे उतने टाइम के बाद ये जो है सिस्टम का सबसे कम एरर होगा। अब यही सिस्टम है, सपोज ये वाला, अगर मैं इसको लूंगा 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा ना, मस्ट इंटीग्रेटर 1 सेकंड, सब इसमें भी इंटीग्रेटर है, वरना अब सिर्फ मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ। अच्छा सॉरी, 1 सेकंड में हमारा इनपुट ही नहीं जा रहा ना, मैं 2 सेकंड देना पड़ेगा। ये 1 सेकंड में मैंने असल में क्या रखा था, स्टेप टाइम नहीं, 1 के बाद शुरू होना चाहिए। मैं इसको 0 करता हूँ, नहीं 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करता है इनपुट देना। मैं इसको स्टेप टाइम करता हूँ 0, आंसर आना चाहिए। तो 1 सेकंड में अगर मैं देखूं हमारा क्या आंसर है 1, दोनों में कितना एरर है, काफी एरर है ना, तो कंट्रोलर तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली कंट्रोलर टेक्स some time to settle, isn't it? Some action has to be taken. Accordingly, the response to the system has to be seen. So every system has its own definitions, isn't it? So इसीलिए मैं अगर 500 भी लो, आप कहेंगे सर उसका भी देखते हैं स्टेटिस्टिक्स क्या होगा। 500 मैंने लिया, ठीक है। ये 500 सेकंड सिमुलेशन है, ठीक है। उमर सुन रहे हो? यस सर सुन रहा हूं सर। इस सेटलिंग टाइम को भी मामा जी 500 स्थान गासनी जोर थी में बुशिस बुशान आफ्टर लेट्स से अराउंड 70 सेकंड्स ओनली। ये तो चला लगभग ना, ये गासा ये सेटल, मैं देख रहा हूँ लगभग आफ्टर 60 सेकंड्स ये सेटल हो रहा है। तो जब मैंने 100 लिखा था मुझे 60 पे देखना था। सो फॉर दिस इन्फिनिटी मींस 60 सेकंड्स इटसेल्फ, इजंट इट? क्लियर? फिर हम देखते हैं सेटलिंग टाइम। अब हम कहते हैं कि भैया हमारे लिफ्ट के लिए 0.01% भी चलेगा, मतलब 0.01 मतलब होता है 0.01, तो मतलब 0.99 भी चलेगा एरर। तो 0.99 एरर लगभग यहाँ पे है सपोज, मैं कहूँगा भैया 40 सेकंड इज एनफ फॉर मी। हाँ मैं कहता हूँ हाँ जी 40 सेकंड में मेरा सिस्टम सेटल होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली लिफ्ट के लिए तो 40 सेकंड नहीं है, तो हो सकता है वहां पर मेरा 40 मिली सेकंड। मैं कहूँगा हाँ 40 मिली सेकंड में अगर ये सेटल भी हो जाएगा ठीक है। इसीलिए हम जब हम लिफ्ट में जाते हैं ना, कोई पैसेंजर्स जब वो रुकता है उसके बाद आपने देखा कि वहाँ रुकता है वो थोड़ी देर, है ऑसिलेशन होती है अगर ऑसिलेशन से कसं वायरॅक कम्पशन कैसा स्विचित तीन मग सुरू का ना त्यापची थोड़ा रुकायचं मैं खुल जल्दी लिफ्ट से हो ना being impatient we say casual plan. So actually it's like kind of that, it goes to that all around g.01 जो भी settling time हमारे लिए defined है। We say that a person may not be able to distinguish between 0.1 mm of length doesn't mean anything to a person, so we say okay let it settle there. This is how designers design systems, ठीक है? यस। तो हमने ये देखा अब सिमुलिंग से इसकी परफॉर्मेंस हाँ जी ठीक हो रहा है सब। आप इसको डिजाइन अगर हमें खुद से करना है वो कैसे करते हैं, सपोज उसके लिए हमने बेसिकली we can see that the same steps that are there. First we go analyze the uncompensated system and determine the location of the open loop pole, and then obviously the dominant second order poles. Then evaluate steady state error for the uncompensated system, which is like this. I have done it for this system. So now इसमें एक important चीज है, ये जो 164.6 है गेन, ये कहाँ से आया बताइए? आपको दिया हुआ है जीटा और सिस्टम दिया है, ये कंपेंसेटर का भी लोकेशन दिया आपको, लेकिन आपको निकालना है ना के। सर गेन हम वैसे निकाल सकते अगर हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर। नहीं क्लोज लूप ट्रांसफर में भी तो के आएगा ना, उसमें भी के आएगा। मैंने यहाँ 164 लिया है लेकिन वहाँ के आएगा। के को मैंने 164.6 लिया, ये कैसे लिया मैंने जरा बताओ तुफैल? सर वो हमने पढ़ा था ना क्रॉसिंग। हाँ नहीं क्रॉसिंग किसकी? सर इसी रूट लोकस की शायद
सर वो क्रॉसिंग पाइथागोरस हमने पढ़ थ्योरम दिया। जे ओमेगा सर रोज से भी हम शायद निकाल जे ओमेगा एंड रियल एक्सेस के बीच में। जे ओमेगा तो ये वाला है, हमें ये पॉइंट निकालना है इसमें, क्योंकि ये हमारा जीटा है ना, ये वाली लाइन क्या है पाइथागोरस थ्योरम परसेंटेज जीटा। अच्छा जीटा ఇప్పుడు వాత్ कुंते वात शाकिन ना दोनों नहीं सिस्टम में चीज कंपेंसेशन अनकंपेंसेशन जीटा पे वात वो यात लाइन का क्रॉस कर अगर यात लाइन क्रॉस कर अस्विश लास्ट टाइम ये कर रहे में तो हम प्रॉब्ली रूट लोगों सी मस एंडस पे ब्रेक अवे ब्रेक इन पथ करना है जे ना इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी कराया ना मैंने कुछ, जो मैंने रूट लोगों की क्लास ली थी ऐसी ना क्लास। यस यस है ना, ये जो जीटा ये वाली एक्सिस है, इसको हमें दिखाना है कि इस पे ये पॉइंट है, वो कैसे दिखाते हैं, मतलब सॉरी इस पॉइंट को निकालना है सर तो मैग्नीट्यूड एंगल क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं। नहीं वो तो इसमें हमें बताएगा कि हाँ जी ये इस एंगल पे है, लेकिन असल में है कि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। हमें पता है ये जीटा है और हमें पता है कि ये रूट लोकस पे है, लेकिन ये पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसमें एक मेथड जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, हम बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए डोमिनेंट पोल्स लेते हैं इस पर। नहीं हमने, हाँ एक सेकंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब दरवाजा बंद करो, एक सेकंड थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस करा के दरवाजा के भाई क्लास चला शुरू शुरू वाले बोल। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो हमारा जो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गेन चेंज हो रहा है ना के, तो के इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो के कुछ बन के ये पॉइंट पे जो के होगा, ठीक है, उस के से हम बेसिकली वो पोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो के क्या है उसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टाइम आप लोगों से भी डिस्कस करके बताया था, अगर हम ग्राफिकली रूट को सीधे प्लॉट कर सकते हैं तो हम एग्जैक्टली ये इस तरह नीचे अगर हम प्लॉट करेंगे ये वाला पॉइंट तो हमें मिल जाएगा, है बाय ग्राफिकल क्राइटेरिया से भी निकलता है, उसमें सिर्फ हमारा एक सिर्फ अननोन होता है। मैग्नीट्यूड से हमें क्या निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। यस सर, लोकेशन सर इसकी सर बेस निकलेगी रियल एक्सिस की, उसमें एक ही अननोन होता है, मतलब एक्स ऐसे क्या पोजीशन से सॉरी आत्मस अगर ऐसी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन तक नहीं करते सर, डायरेक्शन क्राइटेरिया से उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता है किसमें सर, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से। हाँ मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फ्रॉम दीज ना वेक्टर्स जो यहाँ से हैं, सिर्फ से 3 वेक्टर डालेंगे हम, निकलती हैं उससे क्या निकलता है बेस नहीं, वो मुझे लगता है इन 3 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो किसका मैग्नीट्यूड सर 180 होगा ना सर, वो एंगल क्राइटेरिया से, अगर एंगल क्राइटेरिया से हमें एंगल मिलेगा सर, उसमें सिर्फ वन अननोन होता है, वो भी हम निकाल सकते हैं सर। मुझे यहाँ तक लगता है एक तो हम ये वेक्टर्स यहाँ से डालेंगे इस पॉइंट पे सर, वही तो उससे हमें एंगल मिलेगा, और हम अगर मैग्नीट्यूड उनका निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो हमें तो इस लाइन का पूरा मैग्नीट्यूड और वो भी मिलेगा एंगल। हेलो हाँ सर, हाँ, मगर मसला है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट नहीं पता ना हमें कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट। सर वो ग्राफिकल से ही निकलेगा, मतलब वो ग्राफिकल से निकल सकता है वो, हाँ किया था मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं वो आप सही कह रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के हमें मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब मिलेगा ना तो उसी का कॉस थीटा और साइन थीटा हमें मिलेगा ना, इमेजिनरी रियल पार्ट निकल तो जाएगा। यस सर। मसला है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, अब जब वेक्टर डालूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये वेक्टर कहाँ तक है, ये इसकी वैल्यू क्या है इस हाइट की, है ना। यस वही क्वेश्चन है असल में मेरा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम एक लिख सकते हैं रूट लोकस में। प्रोग्राम में क्या होगा, वो के की वैल्यू को बढ़ाते रहेगा और यहाँ से उसको अकॉर्डिंगली रूट लोकस की जो ना ये वैल्यूज को चेक करता रहेगा। जहाँ पे आपका ये इस पॉइंट पे क्या ना जीटा जो 0.175 लास्ट में मैंने एक बार डिस्कस किया था, या वरना इसमें फिलहाल के लिए हम मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज यू कैन नॉट राइट अ प्रोग्राम ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट। आई थिंक इन योर एग्जाम्स यू विल आल्सो हैव टू हैव दिस ग्राफ, ठीक है।
अगर ऑनलाइन हो तो हो सकता है मैं मैटलैब से आपको कहूँ करने के लिए, ऑक्टेव से मैं देखता हूँ आगे जाके, लेकिन फिलहाल ना मुझे लगता है इजियर मेथड है कि हम ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से जब मैं इसको जूम करता हूं तो ये पॉइंट है मेरा, है ना, क्लियर तो फैल साहब? यस सर। सर लगभग कोरियम कैच में बराबर पॉइंट अच्छी मुझे ना दक्षिण कवर करा, तो कितना है इसका पोल क्या आ रहा है? ये न्यू ना 161 ही पे सर इसमें सर डोमिनेट पोल सर उससे भी निकलता है। इसमें से हमारा होता है फिर ओमेगा एन अननोन, वो फिर हम मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं, फिर के हमें ये मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से निकलता है। सर अगर हम इसमें एज्यूम करें कि डोमिनेट पोल्स है, पोल्स उसमें हमारा सिर्फ अननोन होता है ओमेगा एन, क्योंकि जीटा गिवन होता है, ओमेगा एन सिर्फ अननोन होता है। ओमेगा एन फिर ये ना एंगल क्राइटेरिया से निकालते हैं, फिर उस हमारी नेचुरल हम ये मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से के निकाल सकते हैं। ओमेगा एन कैसे निकालेंगे हम एंगल क्राइटेरिया से? सर आप सर ट्राइगोनोमेट्री सर। अच्छा हाँ, हमने जो किया था ओमेगा, वो तो ओमेगा एन के बराबर होता है ना, वो जो हमने वो जीटा का लिया था, जीटा बेसिकली उसी का हुआ था ना वो। यस सर। बेस और हाइपोटेन्यूज, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसका जो एक्सिस होती है। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। जो उसकी बेसिकली मैंने एक सेकंड में उसको चेक करता हूँ, जो हमने वो लाइंस ऑफ सेटलिंग टाइम और लाइंस ऑफ कांस्टेंट वो बनाई थी, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ, मैं आपको इसी पे दिखाऊंगा, मुझे जहन में आ रहा है वो कि वो बेटर रहेगा। ये है जो आपकी बुक में भी है, कंट्रोल सिस्टम बुक में जो हमने पढ़ा था लगभग टाइम रेस्पॉन्स में, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये वाला इसी की बात करें ना आप? यस सर। ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने क्या दिखा, इसमें अगर हम फिलहाल इसको देखेंगे इस वाले मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, इसमें हमारा पॉइंट क्या आ रहा है? रियल पार्ट में आ रहा है 0.685 और इमेजिनरी आ रहा है 3.88। ठीक है, या इससे हम ये एटलीस्ट पता कर सकते हैं गेन 161 है, और हमने जो गेन लिया या बुक में जो गेन लिया 164.6 है, ये लगभग सेम ही है। ठीक है, इतना जो डिजाइन में हमारा एरर है इतना चलेगा हमारा। ठीक है, सो इवन इफ यू टेक 161 आई थिंक दैट वुड बी फाइन। ठीक है, so even if you take 161 that would also be fine, and even 164 will also work for us. So accordingly these pole at this location is 0.685 and 3.88. ठीक है, which we can actually calculate from here. ठीक है, so if we assume even 161 to be k, ठीक है, as a point where it crosses this zeta line, then accordingly we can find out its closed loop poles, which we can find out from the roots of the third order polynomial. So I have done probably in MATLAB also. I'll just show it to you. यह मैंने किया था, ये कमांड मैंने ली थी 84.6 जी। So if you use this command roots, which is used to find the roots of a polynomial, and the polynomial is in this form because we had s cube, इसको मैंने closed loop polynomial को solve किया, so s cube plus 13s square, 32s and 184.6. ठीक है, accordingly I get these poles. आपने 184.6 लिया है? नहीं 184.6 क्या लिया मैंने? नहीं वो बेसिकली जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको पॉलिनोमियल को, देखो 164.6 लिया है ना मैंने, पॉलिनोमियल कितना था एड कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ती 161 नहीं हो तमी हिसाब कशी चेंज हो, तमी हिसाब इन रूट्स था ये मैं इसमें नहीं तो विश्का जत मैटलैब उसमें ना रूट में किसी देती हूं
0.685. You guys tell me some change because I made it 0.69 because I had taken 164 as the location. So in fact we can just check it here. So it's like 161 था ना, वो 181 हो जाएगा ये फिर 161 ऊपर क्या आएगा लेकिन 132 181 नहीं होगा, क्या ज्यादा ले हाँ 161 164 161 81 हाँ तो ये आ रहा लेकिन 0.7068 706.685. तो ये जो हमारे रूट्स हैं ये किसके रूट्स हैं? क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन के क्लोज लूप पोल्स. So how many poles we are getting? 3 poles. So one is out of them is the real one 11.5. ठीक है. The rest of the two are complex poles. 0.706 दिखा रहा है इसमें 130, 32 and 181 corresponds. I guess 181. Gain is 161. तो देखना पड़ेगा इसमें ये एरर क्यों दिखा रहा है. इसमें टूल्स में इश्यू हो जाता है, इसमें कौन सी वैल्यू दिखा रहा है मुझे. इसे मैं यहाँ देखूंगा 93 290 जूम करके देखता हूँ. असल में लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट जो है ना, ये अभी जो मैं इस पर कर रहा हूँ ऐसे क्लिक, थोड़ा सा इसमें भी कभी एरर दिखाता है. से यहाँ पे आप देखेंगे एक 30 है, फिर डायरेक्ट 93 पे जाता है, फिर 290 पे जाता है. ठीक है. So to be careful in this, getting the exact values. So let's say now it will move with different, range. 30, 93, again 290. Carefully see whether it's doing the correct or not. Check it here. 93.3, 290. We are interested in between. तो 161 लिख रहा है इसमें, लेकिन 162 162 ये मैं चेक करता हूँ थोड़ा इसमें क्या इशू आ रहा है. बट एनीवेज दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है. Yes. So this is going through the MATLAB, or you can say the traditional way where we don't use, let's say, Simulink, and try to see how this basically will help us. तो इससे हम यही देखते हैं कि इसके बाद हमें जैसे -10 पे इनिशियली पोल था, वो शिफ्ट हो गया, यानी क्लोज लूप पोल शिफ्ट हो गया -11 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे जो -2 पे था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे जो भी 0.68 हमारे पोल्स है. इसके बाद देन वी कैन इवेलुएट इट स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स विच इज नथिंग बट 1/1 प्लस KP. एंड उसमें KP में हम कैपिटल K की वैल्यू ये डालेंगे जिस गेन पे हमारा ये वैल्यू है, उसमें हमें कुछ स्टेडी स्टेट वैल्यू एरर का आएगा, समथिंग लाइक 0.108. ठीक है. लिमिट S tends to 0 G of S. So G of S is nothing but given part, which is this one. So इसमें आप S को 0 डालेंगे तो ये आएगा 10 into 2 into 1 which is 1/20, and K is 161 या 164. So accordingly you get this 164/20 which is this much. This is KP and error is 1/1 plus KP is 0.108. तो आपको ये सारा अभी तक क्या हुआ, सिर्फ अनकम्पेंसेटेड सिस्टम का ये हो गया.
अब जब सिस्टम को आप कंपेंसेट करेंगे विद जीरो पोल एट जीरो एंड a zero at this point, the root locus will actually shift. ठीक है, so the root locus will shift, but it will not shift drastically. It will be almost similar in nature. I can check it from the book also. You will see the contribution from zero and pole to that point will be almost same. So, but because zeros are positive and negative and poles are negative, so the angle contribution it will be also zero. So it will be almost the same point that we'll be able to get actually. And then we can prove this. Generally, you cannot prove these things even theoretically. You have to go for simulation like Simulink and all. And the way I have done it here is to be the steps has to be taken this way. You have to show it this way that the compensated and the uncompensated system, and उसमें आपने ये ऐड कर दिया और उससे आपका ये परफॉर्मेंस। इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, यू कैन ट्राई आउट दिस, जैसे 0.1 पे है, आप 0.01 ट्राई कर सकते हैं, विच इज मोर क्लोजर टू जीरो, इजंट इट? अब देखिए, आप बताइए, कुछ फर्क लगा आपको? हाँ जी, आप में से कोई है? यस सर। फर्क क्या लगा आपको जब मैंने इसको 0.01 किया? सर उसमें थोड़ा टाइम लगा, फिर उसके बाद ही मतलब अप्रोच कर रहा है स्टेडी स्टेट जीरो, है ना? 1 को जा ही नहीं रहा है ना अभी भी, 500 सेकंड के बाद भी, isn't it? अगर मैं अब करूं 0.01, so I am actually going near to zero, isn't it? देखिए एरर बढ़ गया। इस फिनोमिनन को कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? जरा कुछ ट्राई करो। सर मे भी वहाँ पे पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाए। हाँ जी, तुफैल साहब। तुफैल साहब। हाँ सर। क्यों हो रहा है? हम तो जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, पोल जीरो कैंसिलेशन। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ाऊं, 0.1 था ये पहले, 0.2 करो, जबरदस्त हो गया। अब तो पहले ही आ गया, है ना? सर 30 पे सेटल हो गया। यस सर। हाँ सर, क्या दिल्ली बस पका खबर कौन? इसका ख्याल रखना आप लोगों को, इस बात का जो मैं ये कह रहा हूँ, है ना? तो अभी इसका, इस सिस्टम का जो ऊपर है, इसमें अभी चलो हम 0.1 ही लेते हैं फिलहाल, या 0.2 ले लो चलो सपोज। इसमें जो 0.2 है, ये क्या है? S + 0.2 जीरो जो हम ऐड कर रहे हैं जीरो, है ना? कहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम? पॉइंट पोल ओरिजिन के पास, यानी -0.2 पे, है ना? या -0.1 पे था, ठीक है? लेकिन पोल कहाँ पे है? ओरिजिन पे। वो कौन सा पोल है? वो एस जो हमने इंटीग्रेटर ऐड किया है वो ओपन। हाँ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओपन, ये ओपन लूप पोल है ना? जी सुना उसको, ओपन लूप पोल। जी सर। और हम जो असल में पोल जीरो की कैंसिलेशन की बात करते हैं, इसको आपको ख्याल रखना है, वो हम करते हैं असल में किसकी? क्लोज लूप की, ठीक है? समझ रहे हैं? यस सर। ये याद रखना आप, जब भी हम पोल जीरो कैंसिलेशन की बात करते हैं वो ओपन लूप नहीं होती है, क्लोज लूप की होती है। और क्योंकि जीरोस को तो कोई है ही नहीं रोल ओपन क्लोज में, पोल्स ही चेंज होते हैं सिर्फ क्लोज लूप में। तो हम क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप पोल्स ही डिटरमाइन करती है स्टेबिलिटी, क्लोज लूप पोल्स ही डिटरमाइन करता है ट्रांजिएंट रिस्पांस वगैरह, जो अब ये तो असल में हम करते करते भूल जाते हैं वो समझ, तो इसलिए सामने में कुछ और दिखता है और होता कुछ और। So that's why it's to be played out that whenever we talk about pole zero cancellation, it is the zeros and the closed loop poles that have to be seen, ठीक है? यस सर। अब मुझे बताओ, इसमें क्लोज लूप पोल हम कैसे देखेंगे इसका?
कौन सा तो फिर सब सर कौन सा वाला किसमें ये ना ये कंपेंसेटर लगी था सर मैं क्लोज लूप पोल बिकल वो ना मैं कहता बदल कथा मैं वो अगर ओपन लूप पोल ये पोल जो नजदीक पान मगर सह असली कथ यमिच कैंसिलेशन कत चलान कह असली जीरो तो बेस क्लोज लूप पोल जीरो पोल तथ से कर कैंसिल गस ना कर यस सर सह कतन ाड़न बह कोई तो बताओ ये तो बहुत आसान है सर लिखेंगे ना क्लोज लूप फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन हाँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन करेंगे उसको इवेलुएट करेंगे उससे हमारा जो पोल्स निकलेंगे वो होंगे तो मगर अगर फिलहाल इस मैटलैब से हेल्प हम हेको मैटलैब से कर अगर बह मैटलैब से कर मे गस ना बन काइंड ऑफ रूट लोग सही गस ना बन गस ना बन मैटलैब से रूट लोग गस यस सर यस सर बे क्या मैं ऐड कर ये प्लांट होता है मैं कुर्मत ये मे s + 0.2 कर डिवाइड बाय s कर यस फिर कन क्या ये मैं न्यूमरेटर में s + 0.2 छना या 0.1 वो माइनस 0.1 छना ये पोल यस सर यस सर s + 0.2 ने ले इधर लिखो मगर 1 तो बे 0.2 छना उत के लिखो फॉर्मस में ये ना इतके नहीं मगर फिलहाल रूट लोकस बंद ही ग्रेड करो बंद करो बंद या मैं s + 0.1 आवा है कि ना सर यस सर छना s + 0.1 या 0.2 ने फिलहाल डिवाइड बाय s सर एस नहीं आएगा इस पर जो इंटीग्रेटर है हाँ वो कर रहा है ना अभी मैं एक एक करके कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय s तो इसका मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल में 0 एक जीरो ऐड करना है वो मैं यहाँ करूँगा ऐसे पानी ऑर्डर चेंज बना F5 हाँ हो गया ना देखो ये s हो गया ना कॉमन यस सर चेक ना s डैब्रिकेट बनो पानी थी बनो ट्रांसफर फंक्शन इतके बनो गो इसी कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन बन सो बन इतके बना कितना ठीक है तो फिर यस सर तो अगर इसका मैं रूट लोकस बनाऊं एज्यूमिंग गेन टू बी 0 to infinity और इसी ग्रिड पे एक एक बात रूट लोकस ठीक है यस 0.174 लाइन बनो तो इतने ना तम पे पकना होनी अवई ओद को कि ना यस सर ओद को अवई कि ना वह पाई चलो इस तप पकान वगैरह वगैरह सोरे ठीक ट्रांजिट रेस्पॉन्स ठीक स्टेडी स्टेट जीरो मगर इंटरेस्ट बह क्लोज लूप पोलस मुतलिक जीरो पोल जीरो कैंसिलेशन क्या यमिक जीरो आव ना वन कि ये सॉरी सेकंड सर यह ओपन लूप पोल 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 ब्या गो जीरो अमज 1 2 3 तो 4 जीरो पे ना 4 पोल्स यस सर बे गो 0 at 0.1 गो कि ना यस सर अमिक क्लोज लूप पोल कुस कुस एट दिस गेन एट अच्छा अमिक रूट लोकस कत कत यह ध्यान सा बुझ कत तवे जेठरान टॉपिक ना अख रूट लोकस ग्रीन लाइन कि ना सर इन्फिनिटी तक है ना एक रूट लोकस ये है कितने पोल्स है इसमें पहले बताओ ओपन लूप पोल्स 3 इसको देखो ना 4 हो गए ना फोर्थ ऑर्डर ना ना 4 ओपन लूप पोल्स यस सर रूट लोकस क्या बना प्रिंसिपल ये पोल्स हैं तीदे क्या असन तीदे क्या असन ब्रांचेस यस सर कस ब्रांच छो तत आमस 3 आ रही है चूरिम कोत गई सर वो इन्फिनिटी से है कैंसिल होता है ना 0 से हाँ ठहरो पहले मैं देखता हूँ इसको मैं अगर पॉलिनोमियल बनाऊं इसको इस पॉलिनोमियल के अगर मैं रूट्स ढूंढूं रूट्स ऑफ ये S4 जो ना इरकन क्या ये कोएफिशिएंट 1 पति 13 पति 32 पति ही नंबर अच्छा गेन ऐड करें कुछ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया अच्छा अगर बात के लगाऊं ना मैं जी क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन छाड़ूं ठीक है जी बाई 1 प्लस सॉरी के जी बाई 1 प्लस के जी सर
छुना यस सर गेन अगर बह थवन फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन में गेन है कि ये जन अगर मैं जी दित क्लोज ट्रांसफर फंक्शन क्या आसान k into g divided by 1 plus k gh hs छुना आसान यस सर hs छुना 1 गो ना k into gs by 1 plus k into gs 161 by तमिश क्या आसान दिलिए डिनोमिनेटर 1 plus ये GFS k into g of s छुना आसान इतकेन छुना आसान ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लगता है into h of s थे अगर चूंकि h of s 1 इसलिए कोई युक्तियात ये छुना ये कैसे इक्वल टू 0 ये छुना पॉलिनोमियल यस सर तो मगर जी में कि ये ठीक है अगर मैं अमिक रूट छान मे के इवेलुएट ऐड कर हम कर मल्टीप्लाई पे मे छान इज इक्वल टू 0 अत अमिक रूट छाड़ित तम छान बह फिलहाल गोड़ बह अमिक कुस वह वो मे गेन हसा जरूरत ये क्रॉस कर पॉइंटस पे सह क्या डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली नहीं बराबर ठीक 155 गेन ठीक है ये 0.174 कर क्रॉस गो ना अम ज्यादा हेक गेन थी सिस्टम मज क्या मा हेक थवित समझ में आया यस सर तो इसको टाइम लगेगा समझने में लेक्चर बाद में फिर से देख लेना मुझे 0.7174 है ना मेरा डिजाइन क्राइटेरिया ये मुझे चेंज नहीं होना चाहिए ओवरशूट ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स तो मैंने इसमें कंपेंसेटर डाल के देखा कि हाँ रूट लोकस थोड़ा चेंज हो गया वैसा ही है लेकिन थोड़ा चेंज हो गया लेकिन अब मुझे देखना है क्रॉसिंग का क्रॉसिंग में देख रहा हूँ इस वक्त लेकिन गेन कम हो रहा है 155 ही गेन होता है तो 164 है 161 अब मेरा 161 ही दिखा रहा है गेन ठीक है तो उस गेन पे मेरे को रखना है कंट्रोलर को तो मेरा कंट्रोलर जीरो स्टेडी स्टेट एरर हो जाएगा अब मेरा आर्ग्यूमेंट है कि भैया अभी तो हम कह रहे थे 0.01 अब 0.02 कर रहे हैं हम या 0.001 कर रहे हैं वो क्यों स्टेडी स्टेट खराब हो रहा है उसकी वजह यह है उसका आर्ग्यूमेंट का रीजन ये है कि जो हमारा इसमें क्लोज लूप पोल्स हैं वो या ब्रांचेस हैं वो 4 होनी चाहिए लेकिन हमें एक दिख रही है दूसरी और तीसरी चौथी कहाँ गई चौथी हमें पता है वो होनी चाहिए इसके बीच में ये वाली शायद चूर लेफ्ट द ऑर्ड ना गोरा ये प्यून शुरू प्यून तो ये अति मजा अति लेकिन 1 2 3 एंड दिस विल बी 4th तो समवेयर हियर ठीक है अगर ये रूट लोकस है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होना चाहिए क्लोज लूप पोल्स होनी चाहिए इसके ऊपर क्योंकि ये ओपन लूप पोल्स है ओपन लूप 0 है तो हमारा तो पता है कि पोल से 0 जाता है ना रूट लोकस बीच में क्या होंगे बीच में क्लोज लूप पोल होंगे वही हमारा चौथा पोल होगा क्या होगा चौथा पोल 2 पोल्स हमारे ये है ये जो यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक ये पोल होगा 2 होंगे तीसरा पोल हमारा लगभग यहाँ होगा लगभग इसके यहाँ लेफ्ट में वो कुछ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे बिकॉज वो काफी दूर है e raised power minus that is almost very negligible so that doesn't impact the transient response but how because this is very near so this will impact the transient response but where is that pole and that has to cancel with the 0 clear आया समझ का so that pole has to cancel with the 0 that is which we have put in something like 0.2 0.1 0.001 वहां गए 0.1 चिन्ह निवान तो 0.1 के लिए वो पॉइंट हमें ढूंढना है वो क्या 0.1 के लिए जो अगर हम लेंगे जीरोस उसमें गेन उस गेन पे वो क्लोज लूप पोल क्या आएगा गेन हमें देखना है गेन हमारा 151 फिक्स हो गया ना ऊपर 1.174 लाइन से गेन फिक्स हो गया ना इस लाइन से हमारा तो 0.155 गेन लेग पे हमें देखना है ये कहाँ चलेगा सपोज यहाँ चलूंगा मैं यहाँ चलूंगा लगभग और चलूंगा पता नहीं ये कर्सर ज्यादा नहीं मूव कर पाएगा 300 जा रहे हैं तो इसके बीच में कहीं 100 तो ये लगभग पोल है 0.09 यहाँ पर और इससे पहले पोल आ रहा है 0.08 लगभग वो 0.085 to 0.09 मंद पोल को 0.088 था उन सपोज 0.088 और 0.1 नजदीक है कि नहीं 0.1 की बात करेंगे फिलहाल तो 0.1 के नजदीक है 0.088 बताओ तो फैल साहब फलक मशीदा फैजान जो इस वक्त मैंने 0.1 लिया है 0
इसके नजदीक है ना 0.088 because that's almost around equal to 0.1. Yes, sir. But the moment I take this as 0.01, ठीक है, 0.01 मैंने लिया, इससे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस खराब हो रही है, या इससे भी और ज्यादा नजदीक ले रहा हूँ जीरो के, उससे भी परफॉर्मेंस खराब हो रही है. क्यों हो रही है खराब? देखिए, इसको हमने देख भी लिया, देख भी लिया कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है ना, एरर काफी रह रहा है एंड में. वो क्यों हो रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं. 0.001 जब हम लगाएंगे यहाँ पे अब, तो हमारा ये 0.001 है ना. यस सर. ये करते कमेंट था व्हाट विच द ट्रांसफर फंक्शन मैंने बराबर थी कि ना. सर्च होना ना आपस 0.001 और मैटलैब में मैंने वही लिया 0.001. ठीक है, और वही आ गया ट्रांसफर फंक्शन भी, बाकी सारा सेम है. ठीक है, अब मैं इसका रूट लोकस बना रहा हूँ. ठीक है, तो तब ओके सर सेम तो आ रहा है रूट लोकस, क्या फर्क है ना, सेम तो है, मैं भी कह रहा हूँ सेम ही है. लेकिन लेट्स वॉच दैट गाय. अब ये रूट लोकस आ गया, गेन तो वही है ना 155. यस सर. आप देखो, आप ढूंढो क्लोज लूप पोल को. 155 के बीच ये कितना आ रहा है? लगभग 0.000008 है ना. यस सर. 0.008 और उसके बाद क्या आ रहा है, सॉरी 0.0009 को 0.0085. हमने क्या लिया? 155.008. 0.008 is near to 0.001. Second, 0.08 this 0.008 आना चाहिए था. नहीं, 0.008 आ रहा है, तो 001 लिखा है मैंने वहां पे. एक सेकंड, 001 इसका रूट लोकस, यहाँ मैंने 0 डाला है. हाँ ठीक है, इसको देखना पड़ेगा फिर से मुझे, लेकिन फिलहाल मेरा इसमें मेरी तरफ से जो है क्या कहते हैं उसको, इन्फ्रेंसेस से निकल रही है कि 0.008, 0.009, 0.00885 है लगभग ये, which is near to 0.001, which is fine because it has to be near to 0. Exactly. It has to be near to 0, but इसमें देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा और, लेकिन इसमें आर्गुमेंट ये हो सकता है कि this pole actually which is 0.0009. ठीक है. Yes sir. This is much actually near to the imaginary axis. मैं थोड़ा सा देख के आपको बताऊंगा फिर से. This is much ना kind of near to the imaginary axis. हाँ origin है imaginary axis. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, इसमें इस केस में अगर हम कंपेयर करेंगे ना इन दो सिस्टम्स को, मैंने क्यों बनाया था वो कंपेयर, अच्छा तो लैग वाला बनाया था मैंने, तो मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कंपैरिजन के लिए. सो जो ये वाला सिस्टम है जिसमें हमने 0.001 लिया है, ठीक है, दिस विल लीड टू मोर एरर. ये भी अभी आई कैन मे बी टेक इट नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा इसमें देखता हूँ और इसका वैलिड रीजन क्या है. ठीक है, सो दिस लीड्स टू मोर एरर, बट गोइंग अवे फ्रॉम इट मे बी समवेयर आई एम आल्सो मिसिंग. बात तो है, व्हेन इफ आई टेक इट 0.5 this is going much stable early, but the overshoot is increasing. चलिए आप इसको देख लीजिए, मैं अभी थोड़ा सा अपनी जगह देखता हूँ what would be the possible reason for this. ठीक है, maybe inshallah on Wednesday we can discuss this in more detail and we'll take up the lag and lead compensator also on that day. But somehow if we see by simulation this is getting settled early, isn't it? Around 14 only with the same name, but I'll have to look for the reason. What is the reason? That maybe we'll have to check with the gains and other things.
इसमें एक सेकंड, इसमें गेन क्या आया था? इसमें गेन हमने देखा नहीं, एज्यूम क्या सेम आएगा, गेन क्या आया था इसमें? 158। नहीं, वो तो उसमें आया था। अब हमने जब 0.01 लिया उसमें गेन क्या है? गेन इसमें भी ज्यादा ही होगा, सेम ही होना चाहिए क्रॉसिंग पे। 161 किसका दिखा रहा है? एक से नहीं, ये किसका है 161? सर ये पहले होगा। 0001 का ही है। 001 ही लिया ना हमने यहाँ पे। 001 है सर। चलो मुझे लगता है आई थिंक विल स्टॉप द क्लास हियर, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में इसमें देख के बताता हूँ, ठीक है। आप भी अपनी जगह ट्राई कीजिए इसको सिम्बलिंग वगैरह को चलाने की, खुद भी कुछ इसको मैनिपुलेट कीजिए, देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। एंड मे बी इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी शुड बी क्लियर, ठीक है।